Yes, good evening. Uh, I am Dr. Gurmeet from Tavleen Foundation. I am audible to all. Just message me. I am audible to all of you, please. Okay. Today we are going to talk on the subject back to basics of life. In today's environment, we are living a life just like जिसे हम कहते हैं ना कि एनिमल्स चिड़ियाघर में कैज्ड होते हैं. We people are caged these days in our own homes. And what is the reason behind it? I am audible to all. Just message me. My voice is reaching to you. Just please message me, anybody, any one of you, so that I can continue it. Am I audible? Okay, thank you, Mr. Chawla. So, we are caged these days in our houses. क्या आपने सोचा है कि आप इस स्थिति में, इस कंडीशन में क्यों हैं? क्या इसके इसके पीछे रीज़न है? अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल टोटली बिहाइंड दिस scenario. Because we took birth on this planet, but we didn't learn what is life. केवल जन्म ले लेने से ही जीवन नहीं बनता. We have to make life, and that is in our hands. How should be our life? If we understand life, then only we can make better life. We must know what life is. It is very difficult to define life because it is not a thing which can be defined, or it is not a scientific phenomenon. It is a natural phenomenon. And life is in living. There is difference between life and living. Our way of living defines our life. Life is not a thing, life is a process. My guru defines it as life is like people meeting on a boat, on a river, for some time, and they will not meet again. I repeat this profound definition of life. Life is like people meeting on a boat on a river for some prescribed from some allocated time, and
they shall not meet again. Life is a mystery. Life is uncertain. Life is a journey. Life is a journey from your mother's womb to your real mother's tomb. एक आपकी बायोलॉजिकल मदर होती है जो आपको जन्म देती है, और एक मदर है जो इस संसार में आने के बाद आपकी टोटल केयर करती है, एंड शी इज मदर अर्थ. सो द योर बर्थ एंड योर डेथ both are cared by your mothers. One is biological mother and one is mother earth. तो ये जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो स्पैन है, जो टाइम है, जो पीरियड है, दैट इज लाइफ. माय मदर, योर मदर gave birth to us, but we have to make this life beautiful. Life is an opportunity to manifest God through us. We human beings only have this opportunity to manifest God through us, because we have mind, we have brain. You have a dog at your home, and how dog can be happy in his or her life? What she needs? A dog needs full stomach. अगर उसका पेट भर जाता है तो वो खुश रहता है. या कभी आपका कोई पेट डॉग है, उसे आप बॉल खेलने के लिए दे देते हैं, वो मांगता नहीं है तो वो और खुश हो जाता है. दैट्स ऑल. दैट इज हिज और हर लाइफ. अ डॉग्स लाइफ एंड एनिमल्स लाइफ. उनको जब खाने को मिल जाता है, उनका पेट भर जाता है, तो दे बिकम हैप्पी. अ ट्री नीड्स टू बी वाटर्ड, नथिंग एल्स. उसको पानी मिलता है, ए ट्री इज हैप्पी. But a man, a human being, needs more than these trees and animals. Why? Because we are specially designed by Brahma out of happiness, not out of frustration. We have special needs. We have some desires in our life. That's why we human beings, the human kingdom is above the animal kingdom and vegetation kingdom, which is present in this world. So we have this special phenomena called mind. Remember, mind is not any organ in the body. It is bundle of thoughts, and we can create a beautiful mind, and through which we can create a beautiful life. If you have a beautiful thought process, you can have a beautiful life. You can go through a beautiful living.
There are two ways to live this life. Only two ways. Either live rich or die rich. Either live rich or die rich. What it means? It means, I explain you with an example. Buddha was a son of king. He was a prince. Mahavira was also son of a king. Guru Nanak was son of a businessman. But they lived their life richly. They didn't die rich. They became beggars in their life. They never became king in their life. Buddha was born king, but he became beggar. Why? Just to live richly. Because he came to understand that there are two ways to live. One is to die richly, or other is to live richly. Any man who has any understanding or wiseness will choose to live richly. Because dying a rich man means you have so many accounts full of money, you have large properties, you have a large so many possessions, and when you die rich, that is not a life. Because dying a rich man doesn't mean anything. You simply wasted yourself and the time allotted to you for nothing. When we talk of the basics of the life, first basic of the life to gain in our lives is to know that we have to live richly. We should not die rich. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवन में ग्रो ना करूं या मैं पैसा ना कमाऊं या मैं इस एडवांस्ड मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ पैरेलल वे में न चलूं, ऐसा नहीं है। हमें आधुनिकता को अपनाना है, पर साथ में हमें अपने ट्रेडिशंस, अपने कल्चर्स, अपने वर्च्यूज, अपने लाइफ के बेसिक्स, उनको भूलना नहीं है। इफ वी फॉरगेट द बेसिक्स ऑफ आवर लाइफ और हम एक ऐसी जिंदगी जीते रहें कि सुबह उठे, अपनी काम की चिंताएं हैं हमें, अपने टारगेट्स की चिंताएं हैं हमें, तैयार हुए, नाश्ता किया और दौड़ पड़े दुनिया के साथ, दुनिया की दौड़ में। हमें दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ दौड़ना है, दुनिया के साथ चलना है। बट वी हैव टू कीप ourselves just like a sannyasi in this whole world, enjoying everything in the life, fulfilling every desire in the life, but living as sannyasi in this life. If you live in your family, we are householders. We live in our family, but in that family, with your family members, with your parents, with your wife, with your husband, with your children, there also you have to live life as sannyasi, with no attachments, only with love.
there is difference between love and attachment. Love is our basic need of our life. Attachment is not. When you are in love, you are a happy person. But when you are in a attachment, you are unhappy person. So we have to live life in our family, in this world, but in such a way that we are alone. We are a sannyasi. Is it possible? Yes, is it possible? The happiest persons on this earth are those who live life richly. Richly का मतलब पैसे से नहीं है. रिचनेस का मतलब आपके जीवन में मीनिंग है कि नहीं, आपके जीवन में डिवाइनली वर्च्यूज को यूज करते हैं कि नहीं. डिवाइनली वर्च्यूज कौन सी होती हैं? दैट इज ट्रू लव, दैट इज कंपैशन, दैट इज फॉरगिवनेस, दैट इज कंटेंटमेंट, दैट इज मीनिंग ऑफ द लाइफ. यू मस्ट नो व्हाई यू आर हियर इन दिस वर्ल्ड. आपको पता होना चाहिए आप केवल इस दुनिया में काम करने या बिल्स के पेमेंट या सारा दिन दुनिया के साथ दौड़ में लगे रहने के लिए ही नहीं आए हैं. यू हैव कम हियर विथ ए पर्पस, विथ ए एम, विथ ए मीनिंग ऑफ लाइफ. और जो लोग मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं वो इस संसार में, इस दुनिया में दुख पाते हैं. डियर फ्रेंड्स, वी आर इन लॉकडाउन्स and we don't understand. We are not till date, after 2 months of this lockdown period, we are still not able to understand. We are in confusion state कि ये सब क्या हो रहा है. And we are not serious about that. हम ये सोचते हैं कि ये थोड़े दिनों में खुलेगा और हमारी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी. नहीं. The pre-corona life will not be same as post-corona life. और जो लोग इस लॉकडाउन से अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, they will suffer more in coming life. अगर लाइफ को समझना है तो सबसे पहले हम डेथ को समझें. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, यू मस्ट नो द डार्कनेस. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस इन लाइफ, यू मस्ट नो द सफरिंग, द सैडनेस. देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस. तो हमें जीवन को समझना है कि जीवन है क्या, तो हमें सबसे पहले डेथ को समझना होगा. मैं कहता हूं मेरी टॉक्स के दौरान, मैं पेरेंट्स के बीच होता हूं, टीचर्स के बीच होता हूं, ऑनलाइन टॉक्स पर होता हूं, मैं कहता हूं अपने बच्चों को भी, टीच द लेसन्स ऑफ डेथ टू योर चिल्ड्रन. व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द डेथ properly, you will live life beautifully because you will understand the impermanence nature of life. You will know that I am here in this world for some days, some years. God sent you in this world with a prescribed time limit. जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी एक्सपायरी डेट तय होती है, बट यू डोंट नो दैट एक्सपायरी डेट. जन्म लेने के पहले ईश्वर आपको बुलाते हैं, कहते हैं आओ, जाओ, मैं तुम्हें धरती पर भेज रहा हूं
इतने समय के लिए, कुछ समय के लिए, इस प्रिस्क्राइब्ड एलोकेटेड टाइम के लिए मैं तुम्हें इस दुनिया में भेज रहा हूँ। जाओ और छुट्टियाँ मना करके आओ। यू आर गोइंग ऑन वेकेशंस, गो एंड एंजॉय ऑन द अर्थ। एंड आपको जब भेजा गया है छुट्टियाँ मनाने के लिए, एंड थिंक व्हाट यू आर डूइंग हियर ऑन दिस प्लैनेट। You are fighting for the powers. You are fighting for the increasing the borders of your countries. You are fighting for the air. You are fighting for the water. You are drawing new lines and new lines on the Mother Earth. And you are destroying this beautiful planet. इसलिए तो नहीं ईश्वर ने भेजा। आपके परिवार में आपको आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि जाइए 4 दिन बाहर घूम कर आइए, छुट्टियां एंजॉय करके आइए। तो जिस शहर में या जिस कंट्री में या जिस होटल में आप जा कर के ठहरते हैं, जिस रूम में या जिस शहर में जाते हैं, क्या आप उसको खराब करते हैं? थिंक ओवर इट। क्या आप उसको खराब करते हैं? आप 4 दिन के लिए रहने गए हैं, कितना जॉय से रहते हैं आप, कितना एंजॉय करते हैं। और जब ईश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा कुछ समय के लिए कि जाओ मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में कुछ एंजॉय करके आओ, छुट्टियां मना करके आओ, तो आप सोचिए कि आप यहाँ जॉय में हैं या कुछ और करने में लगे हैं। अंडरस्टैंड द डेथ। अगर जन्म लेने के बाद कुछ बचता है जीवन में तो फिर वो डेथ ही है। एक सूफी सेंट मर रहा था। ए सूफी सेंट ले डाइंग, हिज वाइफ सेड, शी बस्ट इनटू टीयर्स एंड said, "You are going to leave me." He said, "What are you crying for?" किसके लिए, क्यों तुम रो रही हो? She said, "You are going to leave me forever." That Sufi saint said to his wife, "Dear, this is the truth of life, and this is the only truth of life which cannot be changed. And my whole life was only that I might learn how to die." मैंने अपना पूरा जीवन ये सीखने में बिताया कि मरना कैसे है, और मैं उसके सहारे रोज हर पल को जीता था। मैं हर पल को एंजॉय करता था, क्योंकि मेरे माइंड में, मेरे हार्ट में ये रिमेम्बरेंस बनी रहती थी कि आई डोंट नो व्हेन माय ब्रीथ्स विल स्टॉप। When I remember death, I started living life fully. So, the education of death is compulsory if we want to back to our basics of life. मैंने एक बार कबीर से पूछा, मैं वॉक करता करता कबीर के घर चला गया। मैंने कहा, बताओ कबीर, तुम खुश कैसे, तुम कब खुश होगे? मैं हमेशा तुम्हें उदास देखता हूं इस दुनिया में। तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? बोले, नहीं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। कि जिस मरने से सारा संसार डरता है ना, मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ऑन दैट डे व्हेन आई लीव दिस सफरिंग वर्ल्ड, दिस बर्निंग वर्ल्ड, बर्निंग फ्रॉम डिजायर्स, when I leave this suffering world, I will meet my beloved God. And that moment will be of bliss, that moment will be of आनंद for me. मैंने कहा, आपके घर वाले दुखी होंगे? तो कहता है, होने दो ना इन्हें, ये मेरा कौन सा कहा मानते हैं। कबीर इज सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस।
But this is the story of every human person, human life in this world. कि ये मेरा कौन सा कहना मानते हैं. My family members have forgotten the God in their lives, which created them, which created this beautiful world. तो एटलीस्ट मेरे मरने पर ये कम से कम कुछ दिनों तक ईश्वर को याद तो करेंगे, मैं उससे ही खुश हो जाऊंगा. फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रिटर्न और बैक टू बेसिक्स ऑफ लाइफ, keep God in your every breath. When you keep God in yourselves, the happiness will be yours the whole life. Make God your family member. आपके परिवार में पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं. But if God is missing in your family, then you will suffer. तो बेसिक्स ऑफ लाइफ जो होती हैं वो हमारी रिमेम्बरेंस में ये कहती हैं कि हम ईश्वर को हमेशा अपने नज़दीक, अपने पास रखें. डिज़ायर्स जो होती हैं वो कितनी हों, क्योंकि ये जो वर्ल्ड में अभी हम सफरिंग देख रहे हैं, ये वायरस की या जो भी सफरिंग्स आती हैं, डिसीजेज आती हैं, दीज आर ड्यू टू डिज़ायर्स. ऐसा नहीं है कि डिज़ायर्स हमारे पास न हो या हम डिज़ायर्स को कैरी न करें. डिज़ायर्स को अगर हम न रखेंगे, नो डिज़ायरिंग हम हो नहीं सकते. वी आर नॉट बुद्धा, वी आर नॉट नानक, वी आर नॉट महावीरा. वी आर just simple ordinary human beings. We must have some desires. Desires होंगी लाइफ में, तभी हम ग्रो करेंगे. पर वो कितनी हो? डिजायर्स उतनी हो कि जीवन में डिजायर्स के कारण सफरिंग ना क्रिएट होने पाए, दुख न बढ़ने पाए, दुख न आने पाए. उतनी डिजायर्स हमारी हो. द ह्यूमन बीइंग वांट्स मोर एंड मोर. पर उस मोर एंड मोर की एक लिमिट हमें अपनी लाइफ में, अपनी लिविंग में बनाना है. तभी हम सफरिंग से बच सकेंगे. आज ये हम जितनी सफरिंग वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, दिस इज ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड, ह्यूमन डिजायर्स. किसी की भी हो सकती हैं, पावर्स की हो सकती हैं, पैसे की हो सकती हैं. हमें अपनी डिजायर्स पर लिमिट लगाना जरूरी है इफ यू वांट टू लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ. एंड दैट इज वन मोर बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ वेयर शुड वी गो बैक. वी मस्ट हैव लिमिटेड डिजायर्स इन लाइफ. लिमिटेड मीन्स उतनी डिजायर्स हो कि हमारे जीवन में तकलीफें न बढ़े उन डिजायर्स के कारण. वी मस्ट लिव अवर लाइफ इन मॉडरेशन, विथ एसेंशियल्स ओनली, विथ नेसेसिटीज ओनली. हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी है, कपड़ा है, मकान है, हेल्थ है, जॉब वर्क है. इनके अलावा जो डिज़ायर्स आपकी हैं वो नेसेसिटी नहीं है, वो वांट्स हैं. और जितनी ज़्यादा वांट्स हमारी लाइफ में बढ़ती हैं, हम सफरिंग क्रिएट करते हैं स्वयं अपने लिए. वांट्स आर नॉट नेसेसिटीज. और वांट्स के कारण जीवन में दौड़ शुरू होती है. ये जो सारी दुनिया दौड़ रही है, ये एक ऐसी दौड़ में है जो वांट्स के कारण है, नेसेसिटी के कारण नहीं है. हमारी जो बेसिक्स हैं लाइफ के, जो वर्च्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, जो मॉरल्स हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो हैप्पीनेस है, वो वांट्स के कारण खराब नहीं होना चाहिए.
हमने अपनी वांट्स को इतना अनलिमिटेड कर दिया कि हम अपनी ह्यूमन वैल्यूज़, अपनी लाइफ वैल्यूज़, अपनी लाइफ एथिक्स, मॉरल्स, डिसिप्लिन्स, अपने रिलेशंस, इन सब को कहीं ना कहीं खो बैठे और आज हम सफरिंग में हैं। लिव इन मॉडरेशन, लिव ऑन एसेंशियल्स, बाय ओनली व्हाट यू नीड। अपने घरों में ज़्यादा आप मटेरियल्स को भरेंगे ना, तो नेगेटिव एनर्जी विल क्रिएट एंड योर एनर्जी विल आल्सो डिप्लीट इन मेंटेनिंग देम। Desires never give happiness. Either way, any desire, either fulfilled or not fulfilled, creates suffering, creates unhappiness. अगर आपकी कोई डिज़ायर फुलफिल हुई है तो क्या होता है, और नई डिज़ायर क्रिएट हो जाती है कि अब ये हो गया, छोड़ो, अब नई को फुलफिल करना है। तो खुशी कहाँ मिली? और जो डिज़ायर फुलफिल नहीं होती वो भी अनहैप्पीनेस देती। तो डिज़ायर्स आइदर वे ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। एक नए नए साइकोलॉजिस्ट एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पर गए, और वहाँ जब वो गए तो वहाँ के सुपरिंटेंडेंट उन्हें अलग अलग कमरों में ले जा रहे थे, दिखाने के कौन कौन लोग डिप्रेशन में हैं और क्या क्या केसेस हैं, एनालिसिस कर रहे थे। तो एक रूम में एंटर होते हैं, वो जो वहाँ पर व्यक्ति था उसके हाथ में एक फ़ोटो था, और वो उस फोटो को देख करके बार बार रोता था। तो साइकोलॉजिस्ट सुपरिंटेंडेंट से पूछता है कि ये क्या प्रॉब्लम है इसे। तो साइकोलॉजिस्ट बताता है कि इसे प्यार हो गया था, और जिस लड़की का फोटो इसके पास में है वो इसे मिल नहीं पाई जीवन में। तो ये जीवन भर दुखी रहा और अंततः ये डिप्रेशन में आ गया और अब अस्पताल में भर्ती है। अपनी आधी से ज़्यादा जिंदगी जी चुका है, पर अभी तक उसी दुख में है जो इसे मिला नहीं, जिसकी इसने इच्छा की थी, डिज़ायर की थी। तो जो नहीं मिला वो सफरिंग क्रिएट कर रहा है। वो डिज़ायर जो अनफुलफिल्ड है वो सफरिंग क्रिएट कर रही है। दूसरे कमरे में जब वो गया तो एक व्यक्ति था, वो एक फोटो को लेकर के अपने दांतों में दबा रहा था, कभी पैरों के नीचे दबाता था, अपने शूज के नीचे। तो साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि ये क्या है, इसको क्या तकलीफ है? तो उसने जवाब दिया कि इसकी शादी उस लड़की से हुई जिसे पहले वाला चाहता था। Here desire was fulfilled, but he was also not happy. So in the world, friends, desires either way brings unhappiness. So keep in limit in life for desires. As I was allotted 30 minutes, in very short, I will explain the other basics of life where we should return, keep ourselves back to those basics of life, as we want to live life richly. Life is sacred, life is beautiful, but it is painful also. Pain is inevitable in our life. To remove pain, to make happier life, we should return, we should be back to live a simple life. Life was created simple, and it is important to live it as such. सिंपल लाइफ जीवन जीने के, सिंपल लाइफ जीने के तरीके ये हैं
कि हम अपने जीवन में अपने एक्शंस को सिंपल करें, अपनी एक्टिविटीज़ को सिंपल करें, हम लाइटन अप हों मटेरियली और अपनी थॉट्स को सिंप्लीफाई करें, अपनी स्पीच को, अपने एक्शंस को सिंप्लीफाई करें। हम ये डिसाइड करें कि जीवन में, मेरे जीवन में खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे आर्टिफिशियल चीज़ नहीं चाहिए, मुझे आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना है। जैसी है ना, जैसे नदी का पानी बहता है वैसे बहने दें हम इस जीवन को। मुझे इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाना है। मुझे अच्छे से समझना है कि लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, जीवन महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, इसके सामने और भी कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। Life is sacred, life is important, but the meaning of life, the philosophy of life is more important. हम डोअर नहीं हैं, हम करता नहीं है। वी आर नॉट द डूअर्स इन दिस वर्ल्ड। द डूअर इज डिफरेंट, समबडी एल्स, जो इस संसार को चला रहा है, जो हमें चला रहा है। हम करता नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि 90% थिंग्स विच आर इन दिस वर्ल्ड आर नॉट इन आवर कंट्रोल एंड कैन नॉट बी ब्रॉट इन आवर कंट्रोल। अगर हम इन चीज़ों को, इन बेसिक्स पर चले जाएंगे तो वी कैन लिव आवर लाइफ हैप्पीली। हमें जीवन में हमारे बेसिक्स ये समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में लोड्स को कम रखना है। संसार के बारे, वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या होगा। हम कौन होते हैं सोचने वाले? जब हम इस संसार में नहीं थे ना, तो दिस वर्ल्ड वाज ऑन इट्स नॉर्मल ट्रैक। ये चल रहा था जब आप इस दुनिया में नहीं थे। अभी आप इस दुनिया में हैं, ये चल रहा है, कोई इसे रोक नहीं सकता। और जब आप नहीं होंगे इस दुनिया में तो भी ये चलेगा। दैट्स वाई आई एम सेइंग वी आर नॉट द डूअर्स। We are just part of a very little bit. We are very little thing, a living thing in this world. In your relations, go back to your children, go back to your elders at home, because children are source of happiness. They are source of unconditional love. They are source of innocence. तभी तो आप देखिए ना, बच्चे कितने खुश रहते हैं जीवन में। और दूसरा, किनके पास लौटना है? अपने एल्डर्स के पास हमें लौटना है अपने जीवन में। Why? Because they are the precious gifts to us. They have experiences of life which you don't possess. They are the wisdom of life, containers of wisdom of life. So we must go back to our children, we must go back to our elders to get innocence and to get wisdom in life. हम अपने जीवन में बेसिक्स की तरफ अगर लौटना चाहते हैं तो हमारे परिवारों में, छोटे हों बड़े हों, हम रेस्पेक्ट को लेकर के वापस आएं। हम अनकंडीशनल लव को लेकर के परिवारों में वापस आएं। और परिवार में ईगो की प्रॉब्लम्स आपस में तो होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप लंच डिनर पर बैठें तो हैव हैप्पी मील। हैप्पी मील का मतलब है जो इन दिनों आप ले रहे हैं परिवार के मेंबर्स के साथ बैठ करके। नो आउटसाइड फूड, नो फास्ट फूड। अपने बच्चों को, अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व करें। एंड व्हेन यू सिट, इट विल बिकम हैप्पी मील इफ यू इनवाइट गॉड फॉर दैट मील कंजप्शन।
इनवाइट करें गॉड को कि ईश्वर आओ, हमारे साथ बैठो, आप भी खाना खाओ। दैट विल बी हैप्पी मील। ईट विथ ग्रेटिट्यूड, ईट विथ फैमिली मेंबर्स, and eat in moderation. Remember this. And if you want to return to basics of your life, be vegetarian. We are not made for animals, to eat animals. Animals, birds are our friends. Consider them as our friends. और उनमें भी वो ही एलिमेंट है जो एलिमेंट आपके अंदर हैं, जिसके कारण वो जिंदा हैं और हम जिंदा हैं। वाई किल देम एंड देन ईट देम? बी वेजिटेरियन, देन यू कैन रिटर्न टू योर बेसिक्स। घरों में अपने बच्चों को इन दिनों सिखाइए कि वो सब्जियां लगाएं, पौधे लगाएं। They will understand the importance of life by watching them growing. Life is a game. If you want to play it with wiseness, play it with understanding, and play it with total surrender. हम अभी ज़्यादातर समय अपना इस एडवांस मॉडर्न लाइफ में स्क्रीन्स पर बिताते हैं। बेसिक्स ऑफ लाइफ कहते हैं रिटर्न टू नेचर, एंजॉय द नेचर, इंक्रीज नेचर टाइम एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम। नेचर इज द टीचर, नेचर इज अवर केयर टेकर, शी इज द लाइफ। विदाउट नेचर वी आर नॉट पॉसिबल टू लिव। चेक करिए, अभी आप जिंदा हैं ना इस वक्त जब मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो बी थैंकफुल। यू आर अलाइव एंड इट्स बिगेस्ट मिराकल दैट वी ऑल आर अलाइव दिस मोमेंट। बी ग्रेटफुल इन लाइफ ऑलवेज। ये बेसिक्स हैं लाइफ के। अगला बेसिक्स लाइफ का ये कहता है कि लव शुड बी अनकंडीशनल, देन ओनली इट इज लव। अगर इसमें कंडीशंस हैं तो इट इज नॉट लव। अगर इसमें फ्रीडम नहीं है तो इट इज नॉट लव। अगर इसमें शर्तें हैं तो ये अटैचमेंट है, ये लव नहीं है, ये स्वार्थ है। लव में न स्वार्थ होगा, इट विल बी सेल्फलेस, इट विल बी अनकंडीशनल, इट विल बी इंटैक्ट विथ फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कैरिंग, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, देन इट इज लव। Attachment is worldly, love is pure. When you were born, when you came in this world, you had pure heart, you had pure love, you had pure faith. But my dear friends, when you enter in this world, God sent you with a loving and noble, generous heart, and this world, your family, this society gives you mind, and that's the thing which causes suffering in our life. Remember two things if you want to return in the basics of life era. Be the master of mind, don't become its slave, and be the master of money, don't become the slave of money. Always be religious and somehow spiritual in life, because these things supports to bounce back in life in times of adversity. अभी हम जितनी बड़ी एडवर्सिटी में हैं, a beautiful mind containing the spiritual thoughts,
containing the bliss, containing the happiness, containing the positivity will keep you, will bounce back you in times of adversity. These are the basis of lives. आपका परिवार एक बगीचा है, where you water each other, and the water is of love, of faith, of surrender, of compassion, of forgiveness. These are the basics of life where we have to go back if you want to be happy, or if you want to be happiest person on this planet. Just return yourself and your family members to these basics of life. Basics of life हमें सिखाता है कि live in present moment. Don't live in past. Past is dead. कल शाम को जो मैं था वो मैं मर चुका हूं. आज सुबह जब मैं उठा, आई वॉज न्यू गुरमीत, और आने वाला कल तो मुझे पता नहीं है. तो आई कैन नॉट लिव इन पास्ट और इन फ्यूचर. आई डोंट हैव ए चॉइस. आई हैव ओनली वन चॉइस, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम. And living in present time makes our heart and mind beautiful. जीवन में एक्सेप्ट करिए चीज़ों को कि वी आर ऑफ impermanence nature here in this world, and we don't have control on maximum things in life. Acceptance is very necessary. Be connected with your roots, वैल्यूज़ एंड लाइफ सोर्स. अगर एक पेड़ अपने रूट से डिसकनेक्ट हो जाएगा तो पेड़ की लाइफ को क्या होगा? खत्म हो जाएगी ना. सिमिलरली वी मस्ट हैव टू कनेक्ट, ऑलवेज कनेक्ट आवर सेल्व्स विथ आवर रूट्स, एंड आवर रूट इज आवर लाइफ सोर्स. उससे हमेशा कनेक्ट रहिए. ब्रिंग हार्मनी, sustainable harmony and respect for each other back in your life. जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता. Every person in your family, every person here on the earth has his or her importance. इस बात को समझिए. These are the basics of life where we must return to enjoy the time the God has given to us. मनी इज़ नॉट एवरीथिंग जिसके पीछे हम दौड़ते हैं. यू कांट बाय पीस, हैप्पीनेस, एथिक्स, लव, पैशंस फ्रॉम मनी. मेक इट योर स्लेव. आज से 2 महीने पहले जिस दुनिया की दौड़ में आप शामिल रहे हैं, उस पर सोचिएगा कि किस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे. आज आपका जीवन मिनिमम टू मिनिमम मटेरियल्स के साथ बहुत अच्छा चल रहा है. तब आपके पास पैसा था पर टाइम नहीं था. आज आपके पास टाइम है, और टाइम ही रियल एसेट है, क्योंकि वही आपको अलॉट हुई है. उसकी कदर करिए. स्लो डाउन योर लाइफ, मत भागो. फील योर अलाइवनेस, फील योर ब्रेथ. Touch your heart and feel the breathe. Be grateful for that. In life, become a lamp for someone. It's not difficult. What I am giving you or saying you is not difficult. Become a boat for some people to cross over. Become a ladder for someone. Through these you will get the meaning of your life. और इसमें जीवन की सार्थकता बनेगी. Life should be priority and it should come first. यदि आप जीवन में हैं तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है. अपने जीवन की इस दौड़ को स्लो डाउन करिए और ऐसी बनाइए कि जब आप जीवन के अंत में हो ना, जीवन का अंत आ जाए
तो आप सेटिस्फाइड हों, आप कह सकें कि वाह क्या शानदार मेरे जीवन की दौड़ रही, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो अपनों से विदा होते वक्त, दुखी ना हो। आपको ये लगना चाहिए उस वक्त कि मैंने जीवन को बहुत अच्छे से जिया, मैं सेटिस्फाइड होकर के वापस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बैक टू माई ट्रू होम, जिसने मुझे भेजा था उसके पास मैं वापस जा रहा हूँ। और हमारे एक्शंस इस जीवन में ऐसे होना चाहिए कि जब मैं लौटूं अपने ट्रू होम की ओर तो माँ ईश्वर खड़े हों मुझे बाहों में लेने के लिए कि कम माय सन, जिस एम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मैंने उस संसार में तुझे छुट्टियों पर भेजा था, तू एंजॉय करके आया है, यू एंजॉयड द लाइफ। हम केवल इस संसार में एक काम के लिए आए हैं, जस्ट टू एंजॉय दिस लाइफ, एंड जॉय शुड बी अवर नेचर द होल लाइफ। जितनी भी नेगेटिविटी हो जीवन में, जितनी भी एडवर्सिटी हो जीवन में, आई एम कंक्लूडिंग दिस टॉक, जितनी भी एडवर्सिटी हो, जितनी भी नेगेटिविटी हो, उसमें भी पॉजिटिविटी को ढूंढिए। गुलाब खिलते हैं ना, देखे हैं ना आपने, थॉर्न्स में ही खिलते हैं, पर कितने ब्यूटीफुल होते हैं। कभी कभी गुलाब के फूल को वो थॉर्न्स चुभते भी हैं, बट उस चुभन से उनकी खूबसूरती कहीं जाती नहीं है। दे आर स्माइलिंग, जस्ट स्माइलिंग अंडर पेन आल्सो। तो कभी कभी जीवन की एडवर्सिटीज या बैड टाइम्स या परेशानियां या सैडनेस हमें तंग भी करें, चुभे भी, तो हमारी स्माइल गायब क्यों हो? When you are in sadness, when you are in suffering, just smile. कोई बात नहीं, मुझे दर्द हो रहा है तो, या मेरा कोई अपना चला भी गया तो ठीक है, जाना था ना। We are here all for some limited time. तो उस लिमिटेड टाइम को एंजॉय करिए। रोज शाम को सोचिए, सोने के पहले ग्रेटिट्यूड पे करिए और सोचिए कि डिड आई लिव वेल टुडे, डिड आई लव टुडे, डिड आई स्माइल इनफ टुडे। सोचिए इसको कि आज का दिन जो मैंने बिताया, क्या वो मैंने कुछ मीनिंग, जीवन के मीनिंग को पाया, या वो गॉड मेरे थ्रू मैनिफेस्ट होने लगा? क्या मैं अपनी जीवन की लाइफ को मैं अपने जीवन के समय को रिचनेस के साथ जी रहा हूं? एम आई लिविंग richly or not? When you have these basics of life, you can be a happy person. Do work with your hands. ये शरीर और माइंड, इनको बिजी रखिए, इनको काम दीजिए, इनसे खूब काम लीजिए, ये हेल्दी रहेंगे। सोच के देखिए आपके पेरेंट्स की ओर या आपके पूर्वजों की ओर, वो कितना काम करते थे इन शरीर से, इस माइंड से। वो तो कभी डिप्रेशन में नहीं गए। एंड इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री which is in depressive state. My dear friends, just go back to basics of life, जो थोड़े से मैंने बताने की इस टाइम में कोशिश की है। और इस एडवर्सिटी के टाइम में दुनिया की चिंताओं को परे रख दीजिए कि क्या होगा कल। आज को जी लीजिए। आज का दिन आपका अच्छा गया होगा, कल जब सुबह आए तो उठते से ग्रेटफुल हो जाइए ईश्वर के प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति। और जब पहला पैर आप इस धरती पर रखें तो उस एलाइवनेस को फील करिएगा कि वाओ,
आई एम अलाइव टुडे, थैंक्स गॉड। क्योंकि उस वक्त जब आप उठेंगे दुनिया में कई लोग अपनी अंतिम सांसों पर होंगे, है ना? तो फील द अलाइवनेस एवरी टाइम, आई एम अलाइव, वाओ, दैट्स ग्रेट। Go back to basics of life and make yourself a smiling, happier personality. Then only we can make this world happier and kinder. Thank you very much. Thank you, Mrs. Rita Singhal and Mrs. Subra Srivastava for inviting me and giving me opportunity to present some words before all of you of a beautiful life. मैं ईश्वर से अपनी प्रेयर्स में यही प्रार्थना करूँगा कि आप सबका जीवन बहुत सुंदर हो और आप अपने जीवन में खुश रहें। थैंक यू, नमस्कार।